Hello everyone. Now we start our second part of breathing and exchange of gases. In the previous we learned about the IVR, transportation, total lungs capacity, vital capacity. Okay. Now in this session we learn about the exchange of gases. What happened in the exchange of gases? First of all, exchange of gases. In the exchange of gases take place at two sites. First is alveoli to blood and second between blood and tissue. So first is alveoli to blood. This is our alveolar area. This is our alveolar. Okay. Now first of all aspirate air की when we inhale air. तो ये जो inhale air है it is enter into the alveolar chamber. Now at that time the partial pressure of oxygen is 104 mm mercury. Now what is the partial pressure? Now what is the partial pressure? Now partial pressure is exchange of जो exchange है जो partial pressure है it means कि particular एक गैस का pressure in the mixing of प्रेशर में जो सारे प्रेशर्स हैं जो ग्रेडियंट है उसके अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली वन गैस, जब हम एक गैस की बात कर रहे हैं तो दिस इज पार्शियल प्रेशर. फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. ओके, तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. तो पार्शियल फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. So what is the atmospheric pressure? Atmospheric pressure is 760, okay, upon 100. And what is the percentage of nitrogen which is present into the environment? This is 78%. Now this is the 78%. Now what is the answer कि जब अब हम इसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे ये नाइट्रोजन का तो द पार्शियल प्रेशर इज ऑलमोस्ट लगभग 598 mm मरकरी. दिस इज द पार्शियल प्रेशर कि ये क्या है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस का क्या है हमारा पार्शियल प्रेशर कि जो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ When we talk about partial pressure कि जो partial pressure की बात करें सेम हम अगर हम when we measure the partial pressure of oxygen, अगर हम ऑक्सीजन का मेजर करेंगे तो this is the partial pressure of oxygen. Okay, now atmospheric pressure is 760 upon 100 and what is the percentage of oxygen which is present into the environment? This is 21% of oxygen. 21% of oxygen which is present into the environment. और जब हम इसका partial pressure निकालेंगे तो this is approximately 159 mm mercury. ये कितना होगा 159 mm of mercury. It means कि जो partial pressure of oxygen है when we mix all the gases, तो जो mix all the gases है in mixing of the gases the partial pressure of oxygen is 159 mm mercury. Okay, तो now here तो जो partial pressure of oxygen है वो कितना है 104 mm mercury. यहाँ पर कितना है 104 mm mercury और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40. The partial pressure of carbon dioxide is 40 mm mercury. Now अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दिस इज आवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस इज पल्मोनरी वेन. दिस इज पल्मोनरी वेन और दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी वेन है और ये दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव टूवर्ड्स द टिश्यू. ओके, दिस इज आवर बॉडी टिश्यू. तो नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव टूवर्ड्स द टिश्यू. At that time the partial pressure of oxygen is 95 mm mercury. Okay, now this oxygen when it transferred to the tissue the partial pressure of oxygen is 95 mm of mercury.
पहले कितना था 104 mm ऑफ मरकरी. नाउ एट दैट टाइम दिस इज 95 mm ऑफ मरकरी एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज द 40 mm मरकरी. कार्बन डाइऑक्साइड का तो सेम है. एट द स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज द 40 mm मरकरी. कार्बन डाइऑक्साइड का स्टार्टिंग में भी 40 था ना, यहां पर भी कितना है 40 mm मरकरी. बट ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो कहां ट्रांसफर हो गई टू द टिश्यू. ओके, नाउ ऑक्सीजन ट्रांसफर टू द टिश्यू, दैट्स व्हाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mm मरकरी. अब ये जो यहां पे ऑक्सीजन ट्रांसफर हुई है, अब यहां से क्या रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिस इज ये हमारी क्या है यहाँ पे हमारी रिलीज क्या हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, तो ये हमारी क्या है सिस्टमैटिक आर्टरीज है. These are the systematic arteries and these are the systematic vein. Systematic arteries always carries oxygenated blood and systematic veins always carries deoxygenated blood. ये किसको कैरी करेगी deoxygenated blood. And what is the percentage of deoxygenated blood? अब इसके अंदर in the deoxygenated blood the percentage of oxygen is 40 mm mercury. ओके, नाउ यहाँ पे परसेंटेज और डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई 40 mm मरकरी. एंड नाउ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज द 45 mm मरकरी. नाउ पहले परसेंटेज हमारी कितनी थी 40 mm मरकरी, अब कितनी हो गई है 45 mm मरकरी. इट मीन्स कि सम कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज फ्रॉम द टिश्यू. टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, तो दैट्स व्हाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mm मरकरी. नाउ अब ये पल्मोनरी वेन से वापस कहां जाएंगी पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज से ये वापस एल्वोलर एरिया से क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी. तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, नाउ व्हाट हैपन इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मेन पॉइंट इज द इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस partial pressure. Okay, the main point is the partial pressure of any gases. Okay, so now we can calculate partial pressure like this. Okay, so first of all when we calculate oxygen partial pressure, so atmospheric pressure is 760. Okay, 760 mm mercury. Now divided by 100 and into 21. It means कि 21 this is the percentage of oxygen which is present into our environment. So now this is when we calculated, so this is the 159 mm mercury of oxygen. Okay, so now the partial pressure of oxygen is 159 mm mercury. Okay, so now first of all partial pressure 104. After that जो remove this is the oxygenated blood, ये टिश्यू में ट्रांसफर हुआ, तो now the partial pressure is 95 mm mercury. फिर जब ये आगे और ट्रांसफर हुआ तो जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना रह गया 40 mm मरकरी. और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था 40 mm, जो कितना हो गया 45 mm. दिस इज द पल्मोनरी वेन एंड दिस इज द पल्मोनरी आर्टरीज. Okay, and these are the systematic arteries which carries always oxygenated blood and this is the systematic vein which carries always deoxygenated blood. Exchange of gases occur by simple diffusion due to pressure concentration gradient, solubility of the gases and thickness of the membrane. Okay, so now basically जो exchange of gases, this is depend on the first of all this is the simple diffusion. What happen in the diffusion? In the diffusion जो substance है any substances this is move from high concentration to low concentration. When any substances move from high concentration to low concentration, so when we talk about exchange of gases, so now here the concentration of oxygen is high. At that time the concentration of oxygen कैसी है high है, it is 95. कितनी है यहाँ पे हमारी 95. Now so and when we calculate the concentration of oxygen at the tissue, तो टिश्यू पे यहाँ पे क्या है concentration of oxygen is low. So that's why कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है टिश्यू के अंदर ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव कर रही है
लो कंसंट्रेशन पे, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, हाई टू लो की तरफ मूव कर रही है. तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. एंड ड्यू टू द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, solubility of the gases, it is also important solubility of the gases. Carbon dioxide is more soluble compared to oxygen. And thickness of the membrane, कि membrane की alveolar thickness, it is also depend on the exchange of gases. Now this is the pressure contributed by individual gas in a mixture of gas is called partial pressure represented by PCO2 and PO2. जो just before अभी हमने देखा कि जो partial pressure है हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, PO2 या PCO2. एनी पार्शियल, जैसे हमने करा था PN2, ठीक है, जिसका भी पार्शियल प्रेशर हमें मेजर करना है. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन की कंट्रीब्यूट इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. मिक्सचर ऑफ गैसेस में हम पर्टिकुलर व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर गैस, तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide at different parts involved in diffusion varies from one part to another and moves from high partial pressure to lower partial pressure. High partial pressure जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्वोलर में कितना था, 104 mm मरकरी, ओके. और हाई पार्शियल प्रेशर, और जब ये मूव कर रहा था लो पार्शियल प्रेशर फिर कितना हो गया, 95 mm मरकरी. टिश्यू के बाद यहाँ पे टिश्यू था, उसके बाद आफ्टर दैट ये कितना हो गया था, पार्शियल प्रेशर 40 mm मरकरी. इट मीन्स हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर. मूवमेंट क्या हो रहा है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर. Solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times more than solubility of oxygen. Right? अभी हमने जस्ट इस प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जो पार्शियल प्रेशर है उसके बाद जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इट इज ऑल्सो डिपेंड, सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है कि यहाँ पे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, गैस की सॉल्युबिलिटी इट इज ऑल्सो डिपेंड करती है. तो गैस की सॉल्युबिलिटी इट मीन्स की सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल कंपेयर टू ऑक्सीजन. सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन मच फास्टर देन थ्रू मेम्ब्रेन, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज 3 layer thick, that is alveolar squamous epithelium. Okay, this is the diagram of alveolar. Okay, so now diffusion membrane, and in the previous we learned about the thickness of membrane. Okay, so it is also depend, exchange of gases किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, की जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है. तो यहाँ पे हम थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन किसकी डिस्कस कर रहे हैं, एल्वोलर की डिस्कस कर रहे हैं. तो जो एल्वोलर की थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज 3 layer थिक. जो ये एल्वोलर मेम्ब्रेन है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर एंड दिस इज द थर्ड लेयर. 3 layer थिक, that is alveolar squamous epithelium, endothelium. ओके, तो जो ये फर्स्ट है, this is first is called alveolar, this first is called alveolar squamous epithelium. इसको हम कहेंगे alveolar squamous epithelium. Okay, this is the first membrane which is called alveolar squamous epithelium, and second this is called endothelium, alveolar squamous endothelium. Endothelium.
ओके, तो ये जो हमारी दिस इज द सेकंड, ये क्या है, एल्वोलर इक्वमस एंडोथीलियम, और फर्स्ट दिस एपिथीलियम। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कि दिस इज आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो हमारी दोनों के बीच में जो येलो गैप है, दिस येलो गैप इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस येलो गैप इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये रहा, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस कि जो ये एल्वोलर है, दिस इज द फर्स्ट एल्वोलर, this is the first alveolar epithelium, this is the second endothelium, and this is yellow shaded, this is the basement substances, this is the basement membrane. Okay, so now and this is red blood cells, ये सारी क्या है, these are the red blood cells. Okay, and this is the blood capillary, alveolar wall, and यहाँ से क्या होगी, एयर एंटर करेगी, दिस इज द एल्वोलर कैविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इनटू द एल्वोलर कैविटी, आफ्टर दैट इट मूव टुवर्ड्स द इक्वमस एपिथेलियम, देन इट मूव टुवर्ड्स द इक्वमस एंडोथेलियम, आफ्टर दैट इट मूव टुवर्ड्स द ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ पे इस तरीके से जो ये थिकनेस है, अगर ये मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत ज्यादा होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होगा। तो दैट्स वाई कि जो ये एंडोथीलियम है, एपिथीलियम है, इनकी थिकनेस बहुत डिपेंड करती है, ये बहुत ज्यादा थिन लेयर, दीज आर वेरी थिन लेयर, दैट्स वाई द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन इजीली पास आउट फ्रॉम वन टू अनदर। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ both carbon dioxide and oxygen. Most of oxygen, 97% is transported through RBC and remaining 3% by blood plasma. कि इसके अंदर जो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन. ओके, इन द ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम RBC. ओके, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, फ्रॉम RBC, एंड रिमेनिंग 3% कहां पे प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा. ओके, so this is the oxygen. जब when we talk about oxygen, ऑक्सीजन में कितनी है, 97% कहां से ट्रांसफर होगी, थ्रू RBC, और 3% कहां से ट्रांसफर होगी, थ्रू ब्लड प्लाज्मा. 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBC, 70% as bicarbonate, and rest 7% in dissolved state in blood plasma. Okay, now when we talk about carbon dioxide, okay, now when we talk about carbon dioxide, तो जो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड है, 20 to 25% ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, कहां से ट्रांसपोर्ट होगी, बाय RBC. ओके, 70%, जो 70% है ये कैसे ट्रांसफर होगी, बाय कार्बोनेट. ओके, एंड रिमेनिंग 7%, दिस इज द dissolved form. ओके, इट प्रेजेंट इनटू द dissolved form. तो दिस इज द, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है कि कितने परसेंट कहां से ट्रांसफर होगी, ऑक्सीजन 97% फ्रॉम RBC, 3% फ्रॉम ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% फ्रॉम RBC, 70% by carbonate, and 7% in form of dissolved. Now this is the transport of oxygen. Okay, first of all we talk about the transport of oxygen. After that we talk about the transport of carbon dioxide. Now hemoglobin in RBC combines with oxygen to form oxohemoglobin. Each hemoglobin combined with 4 oxygen molecule. So first of all oxygen, okay, which is present into the RBC, it combined with hemoglobin. This is the HB. ये किससे कंबाइंड हो रही है, हीमोग्लोबिन से, एंड फॉर्म अ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. क्या बना रही है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन.
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट, जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो आरबीसी हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन से कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बना रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HBO, और कंबाइंड विथ 4 ऑक्सीजन, ईच हीमोग्लोबिन कंबाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 hemoglobin combined with 4 oxygen molecule. Okay, now binding of oxygen is related with partial pressure of oxygen and carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature। कि ये क्या है, जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन की है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2, ये भी डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो डिपेंड of transportation of oxygen, percentage saturation of hemoglobin and partial pressure of oxygen forms sigmoid curve oxygen dissociation curve। कि ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये लाइक दिस, कि ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, अब यहां पे this is the oxygen dissociation curve। okay, this is the oxygen dissociation curve, and ये जो oxygen dissociation curve है like this, कि ये कैसा बनता है, like sigmoid curve। okay, this is the sigmoid curve, कि कैसा बनता है ये, this is a oxygen form sigmoid curve। कैसा फॉर्म करता है ये, एक सिग्मोइड फॉर्म कर रहा है, कर्व कैसा फॉर्म कर रहा है, सिग्मोइड कर्व। तो दिस इज अ सिग्मोइड कर्व, और इन दिस कर्व in the alveoli PO2 is more and PCO2 is less than, H plus ion concentration and lower temperature favor the binding of O2 with hemoglobin, where opposite condition in the tissue favor in dissociation of oxyhemoglobin। So now what happen in the transport of oxygen? First of all, oxygen combined with hemoglobin and make a oxyhemoglobin। Okay, after that this sigmoid curve is shift to left side and also shift to right side। okay, this is the left side and this is the right side। okay, so now कि ये कौन सा हमारा लेफ्ट साइड है और ये कौन सा हमारा राइट साइड है। अब व्हाट हैपन इन द लेफ्ट साइड, व्हेन वी टॉक अबाउट लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कर्व, इन द लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कर्व HBO is formation। HBO का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। नाउ हियर दिस इज आवर सिग्मोइड कर्व। ओके, दिस इज आवर सिग्मोइड कर्व एंड दिस कर्व, व्हेन दिस कर्व इज शिफ्टेड टू द right side, this is the left side and this is the right side। okay, when this curve shifted towards the left side and towards the right, what happened in the when this curve shifted towards the left side, the oxyhemoglobin is formed। क्या हो रहा है, oxyhemoglobin का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। ओके, नाउ एट दैट टाइम राइट साइड में क्या होगा, ब्रेक डाउन। ओके, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HBO का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ये किसमें H प्लस HB प्लस O किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, HB प्लस O के अंदर। और यहां पे क्या हो रहा है, HBO का फॉर्मेशन हो रहा है। इट अकर्स इनटू द लंग्स। ये कहां पर होगी, लेफ्ट साइड लंग्स में, और ये राइट साइड कहां पे अकर होगी, टिश्यू के अंदर। ओके, नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर, लेफ्ट साइड टेम्परेचर कैसा होगा, लो।
और राइट साइड के अंदर टेम्परेचर कैसा होगा? हाई, टेम्परेचर इज हाई. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट H plus ion, the H plus ion concentration is low. At the left side, the H plus ion concentration is high. At the H plus ion concentration is high at the right side. Right side में H plus ion की concentration क्या रहेगी? High रहेगी. Now when we talk about pH, okay, pH लेफ्ट साइड में pH क्या होगी? ज्यादा रहेगी और यहाँ पे pH कैसी रहेगी? कम रहेगी. Now when we talk about partial pressure of carbon dioxide, when this curve is shifted towards the left, the partial pressure of carbon dioxide is low, and when it shifted towards the right, the partial pressure of carbon dioxide is high. Okay, now the partial pressure of oxygen is high, and here the partial pressure of oxygen is low. Okay, so this is the transport of oxygen. What happened in the transport of oxygen? First of all, it make oxyhemoglobin. First of all, it make oxyhemoglobin, and one hemoglobin combined with 4 oxygen molecule, and this time at this is make a sigmoid curve. This sigmoid curve shifted towards the left and towards the right. When it shifted towards the left side, the SBO got formation of SBO and it occur at the lung. और राइट कहां पर होगी? इसमें ब्रेक डाउन होगा और कहां पर होगी? टिश्यू के अंदर होगा. लेफ्ट के अंदर टेम्परेचर डाउन, H plus ion डाउन और कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड pH इज हाई. और हियर राइट साइड में टेम्परेचर हाई, H plus ion हाई, partial pressure of carbon dioxide high, partial pressure of oxygen and pH of pH is low. Now this is the transport of oxygen. Now next, transport of carbon dioxide. Now here, transport of carbon dioxide. Carbon dioxide is transported by hemoglobin as carbinohemoglobin. ओके, यहाँ पे अब क्या बन रहा है कि जब ऑक्सीजन का हो रहा था तब जब वैन हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन क्या बना रहे थे? HBO. अब ये किससे कंबाइंड होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से. तो ये क्या बनाएंगे? HbCO2. क्या बना रहे हैं? HbCO2. तो दिस इज द कार्ब अमीनो hemoglobin. This is called carb amino hemoglobin. In tissue, partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure oxygen is less than. Favor the binding of carbon dioxide with hemoglobin. Opposite condition help dissociated of carb amino hemoglobin in alveoli. एंजाइम, अब इसके अंदर जो हमने ये अभी जो जस्ट किया था, दिस इज द, तो वैन ये इट शिफ्ट राइट साइड में कब शिफ्ट हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ये राइट में कब शिफ्ट हो रहा है? जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो राइट में शिफ्ट हो रहा है जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो कहां पर अकर हो रहा है? लंग्स के अंदर. और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है तो कहां पर शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड के अंदर. नाउ एंड वन मोर कि जब यहाँ पे एंजाइम कार्ब अमीनो एनहाइड्रेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयंस टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड. कि जहां पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट transport of carbon dioxide, now here first of all transport of carbon dioxide, transport of carbon dioxide. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले यहां पे सबसे पहले ये किससे कंबाइंड होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल 7% डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, दिस इज द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है हम बात कर रहे हैं PCO2.
हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इसके अंदर 7% आ रही है डिजोल्व में। ओके, नाउ ये कहां पे हो गई, डिजोल्व हो गई। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब यहां पे हमारी CO2 कितनी आ रही है, 23% कार्बन डाइऑक्साइड, 20 to 25%। ये कहां से आ रही है, आरबीसी से। तो ये क्या करेगी, ये हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होके क्या बनाएगी, HbCO2 को फॉर्म करेगी। नाउ रिमेनिंग जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, वो कहां से आ रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड 70% आ रही है, रिमेनिंग जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब आएगी तो वो क्या करेगी, सबसे पहले HbCO2 ये क्या बनाएगी, हीमोग्लोबिन H, यहां पे ये कंबाइंड होगी और ये कंबाइंड होके बनाएगी H2CO3। ओके, ये क्या बना रही है, H2CO3 का फॉर्म करेगी। इसके लिए कौन हेल्प कर रहा है, इसमें हमारा हेल्प करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन हेल्प कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होगा, H प्लस HCO3 आयंस के फॉर्म में क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा। तो ये सबसे पहले किसमें, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, इसने किससे रिएक्ट करा, ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया। वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, H2CO3। दिस इज द H2CO3। ये किसके प्रेजेंस में बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बना। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H प्लस HCO3 के अंदर ब्रेक डाउन होगा। अब ये जो HCO3 है, ये कहां रिमूव हो जाएंगे, टूवर्ड, ये प्लाज्मा से रिमूव हो जाएंगे, आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा। ओके, आउटसाइड निकल जाएंगे। अब ये यहां पे किससे कंबाइंड होंगे, सोडियम से कंबाइंड होंगे और HCO3 बना लेगा NaHCO3। ये क्या बना लेगा, NaHCO3। अब ये जो रिमेनिंग H प्लस आयन है, this H plus ion combined with Hb and it make HHb compound and this is the hemoglobin acid. It is a very weak acid. This is a transport of carbon dioxide. First of all dissolved carbon dioxide है, सेकेंड इट इज जो रिमेन 23% आ रही है वो क्या बना रही है, हीमोग्लोबिन से अटैच होके HbCO2 बना रही है। जो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके H2CO3 बना रही है। H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस HCO3। HCO3 आउटसाइड गया, वहां पे क्या हुआ, इसने NaHCO3 से कंबाइन किया। जब ये HCO3 बाहर जा रहा है सेल से, उस टाइम सेल के अंदर कौन एंटर कर रहा है, क्लोरीन, और ये आरबीसी में प्रेजेंट पोटेशियम से कंबाइन करके बनाएगा KCl। ओके, नाउ रिमेनिंग जो यहाँ पे ये H प्लस रिमेनिंग था, दिस H प्लस कंबाइंड विद Hb हीमोग्लोबिन और इट मेक HHb। दिस इज द हीमोग्लोबिक एसिड एंड इट इज वेरी वीक एसिड। नाउ this is the disorder of respiratory system, asthma. It is due to the allergic reaction. अस्थमा किससे होता है, एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन पार्टिकल्स दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द सिम्टम इंक्लूड्स कफ, wheezing and difficulty in breathing. This is due to the excess of mucus in wall of respiratory tract. Second is emphysema, it the inflammation and abnormal destination of the bronchi and alveolar sac of lungs. This occurs due to the destroying of septa between alveoli because of smoking and inhalation of other smokes. The exhalation becomes difficult and lungs remain inflated. Third, occupational respiratory disorder occurs due to the occupation of individual. This is caused by inhalation of gas, fume and dust particles surrounding of workplace. This includes silicosis,
Abscess due to the exposure of silicon abscess. And third is pneumonia, inflammation, alveolar lungs due to the alveoli streptococcus pneumonia. Now our chapter is complete. Thank you.